Good morning students. Welcome back in our social study class. Now students, today we will complete our remaining chapter 10, that is our surrounding. Students, you know surrounding mean everything that is near or around us like trees, animals, water body, soil, etc. we call this surroundings. So students, today we will start our chapter from page number 67. Here. Now Harish is fishing. As he sits by the lake, he sees birds, duck and dragonfly. Just like him, they are also enjoying the warm sunshine, the water in the lake, in the greenery around. Harish remember what he has learned in class. He decides to surprise his teacher. Help Harish complete the examples of interdependence that he sees around him to show his teacher. Now student, first of all, I want to explain interdependence word. Now in previous class, I will also explain this, but doesn't matter. Interdependence, this exchange between living things and the elements of nature is known as interdependence. लिविंग थिंग्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इनके बीच में जो बार्टर होता है, जो अदला बदली होती है या निर्भरता होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, उसे इंटरडिपेंडेंस बोला जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो हरीश इज फिशिंग करें. एज ही सिट्स बाय द लेक ही सी बर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं, जैसे बर्ड्स है, डक है, ड्रैगन फ्लाई है. जस्ट लाइक हिम, उसी की तरह दे आर आल्सो इंजॉइंग द वार्म सनशाइन को वो इंजॉय कर रहा है. द वाटर इन द लेक एंड द ग्रीनरी अराउंड, लेक में वाटर है, चारों तरफ हरियाली है. हरीश रिमेंबर्स व्हाट ही हैज लर्नड इन क्लास. हरीश रिमेंबर कर रहा है कि उसने क्लास में क्या पढ़ा था. ही डिसाइड टू सरप्राइज हिज टीचर, उसने डिसाइड किया कि वो अपने टीचर को सरप्राइज करेगा. हेल्प हरीश कंप्लीट द एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस. आपको हरीश की हेल्प करनी है इंटरडिपेंडेंस को कंप्लीट करने में, दैट ही सीज अराउंड हिम टू शो हिज टीचर. जो वो अपने चारों तरफ देख रहा है, वो कैसे अपने टीचर को एक्सप्लेन करेगा, तो आप उसकी हेल्प करिए. तो प्लीज हेल्प हरीश टू कंप्लीट द एग्जांपल्स ऑफ interdependence. So students, first of all, tell me what is interdependence. You know interdependence. So please tell me, the exchange between living things and the elements of nature in an environment is called interdependence. So help him. The interdependence I saw between water and living thing is water is the home of the fish. Second, the interdependence I saw between air and living thing is between air and living thing. क्या इंटरडिपेंडेंस है, क्या निर्भरता है एयर में और लिविंग थिंग्स में? दैट इट अलाउ द फ्रॉग, डक, बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड मी टू ब्रीथ. एयर क्या करता है? हेल्प करता है ब्रीथ करने में, क्योंकि वी इनहेल ऑक्सीजन. सो इट अलाउज द फ्रॉग, डक्स, बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड मी टू ब्रीथ. नाउ थर्ड, the interdependence I saw between plants and other living thing. इंटरडिपेंडेंसी बताइए, बार्टर बताइए प्लांट्स और लिविंग थिंग्स के बीच में. सो दैट इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द ड्रैगन फ्लाइज एंड फिश. ओके स्टूडेंट्स, what is the interdependence I saw between plants and other living things? That it provide food. Okay students, because plants provide the food, na, that's why.
So understand what is interdependence? Okay, now move on next page. Here. Okay. Now page number 68. On this page, we should be thankful to our environment for giving us all that is necessary for us to stay alive. Environment is an atmosphere. We should be thankful. हमें thankful होना चाहिए हमारे environment का, हमारे atmosphere का, for giving us all that is necessary for us to stay alive. हमारे जिंदा रहने के लिए, जीवन के लिए जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब हमें अवेलेबल कराएं. However, we do not take care of our environment as we should. जबकि हम अपने environment की इतनी केयर नहीं करते. We pollute the environment around us. हम हमारे environment को क्या करते हैं? Pollute कर देते हैं. So what is a pollute? Pollute यानी प्रदूषित करना, गंदा करना. It is pollute. Pollution happens when the environment is made dirty and unhealthy by our careless action. Pollution कब होता है? When the environment is made dirty. जब हम हमारे environment को गंदा कर देते हैं, हमारे atmosphere को गंदा कर देते हैं and unhealthy, और उसे अनहेल्दी कर देते हैं. किसकी वजह से? हमारे केयरलेस एक्शन की वजह से. जो हम काम करते हैं, कचरा फेंक दिया, डस्टबिन की बजाय रोड पे फेंक दिया, कुछ भी खाया फेंक दिया, ये सब क्या है? ये हमारे इन्वायरमेंट को गंदे करने के तरीके हैं. सो पॉल्यूशन happens when the environment is made dirty and unhealthy by our careless actions. पॉल्यूशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप. पॉल्यूशन बहुत तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप. वी एज ह्यूमंस कॉज लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एक्सेट्रा. सो हियर इज अ पिक्चर. सी how so many garbage is here and there. Land pollution. First, land pollution. When we make the land around us dirty. क्या होता है land pollution? जब हम अपने आसपास की लैंड को, जमीन को गंदा कर देते हैं, उससे होता है लैंड पॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट. देन वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन व्हेन वी मेक द वाटर अराउंड अस डर्टी. जब हम गंदगी पानी में डाल देते हैं, उससे होता है वाटर पॉल्यूशन. और उसके आसपास गंदगी रखते हैं, होता है वाटर पॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट. सो दिस टाइम वी all study about pollution. So pollution is happen when the environment is made dirty and unhealthy by our careless action. So many type of pollution. First, land pollution. Land pollution when we make the land around us dirty, it is land pollution. Water pollution when we make the water around us dirty, it is water pollution. So, move on next page. Here, air pollution. When we make the air around us dirty. Air pollution when we make the air अराउंड अस डर्टी. हमारे चारों तरफ की जो एयर होती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं वो डर्टी हो जाती है, उससे होता है एयर पॉल्यूशन. और यू नो pollution is happens when the environment is made dirty and unhealthy by our careless action. Students, when land and water are polluted, you know, pradushit, they become unsuitable for us. जब ये गंदे हो जाते हैं, लैंड और वाटर पॉल्यूट हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, तो ये अनसुटेबल होते हैं सबके लिए. मॉस्किटोज एंड फ्लाइज लिव इन देम एंड स्प्रेड डिजीज. गंदगी में क्या होता है? मॉस्किटोज और फ्लाइज होते हैं, यानी मच्छर और मक्खियाँ. ये क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं डिजीज को, बीमारियों को. व्हेन एयर गेट्स पॉल्यूटेड इट बिकम्स unfit for breathing. When air gets polluted,
जब एयर है, जो हवा है वो गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, इट बिकम्स अनफिट फॉर ब्रीथिंग, और ये हमारे सांस लेने के लिए अनफिट होती है, ये सही नहीं होती। क्या? when air gets polluted it becomes unfit for breathing. Humans also cause another type of pollution, loud noises that disturb the peace and quiet of an environment cause noise pollution. यही काफी नहीं है, पॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन नहीं, हम लोग क्या करते हैं और भी पॉल्यूशन फैलाते हैं। जैसे ह्यूमंस आल्सो कॉज अनदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, लाउड नॉइज, तेज तेज आवाजें करना, दैट डिस्टर्ब, ये परेशान करता है, ये शांति को भंग करता है, एंड क्वाइट ऑफ एन एनवायरमेंट कॉज, और ये एनवायरमेंट को में क्या करता है, नॉइज पॉल्यूशन करता है। नॉइज पॉल्यूशन यानी, नॉइज यानी आवाज, ध्वनि, इसे नॉइज बोला जाता है इंग्लिश में, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पॉल्यूशन लेड टू लॉस ऑफ हियरिंग एंड फ्रिक्वेंट हेडेक इन सम पीपल। इस नॉइज पॉल्यूशन की वजह से लोगों की जो सुनने की क्षमता होती है, लेड टू लॉस ऑफ हियरिंग, वो कम हो जाती है। हियरिंग यानी होता है सुनना, सुनने की जो क्षमता होती है जिससे हम सुनते हैं वो कम हो जाती है, और कंटिन्यू हमारे हेडेक रहने लगता है। ये कैसे होता है? नॉइज पॉल्यूशन से। ओके स्टूडेंट्स, सो बी अवेयर फॉर दिस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज इज 70. We are responsible for keeping our environment free of pollution. How can we do this? Take a look at the poster. We are responsible. हम रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कीपिंग आवर एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन। हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से फ्री करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें इसको फ्री करना चाहिए। हाउ कैन वी डू दिस? हम इसको कैसे कर सकते हैं? टेक अ लुक एट द पोस्टर। इस पोस्टर में हमें देखना है सेव अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन। दैट्स अ पोस्टर, इट्स अ नाइस पोस्टर। सेव अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से हमारे अर्थ को कैसे सेव करना है, इट इज़ वेरी नाइस। Now first step, plant more trees in your surroundings. Trees provide fresh air, shelter and food for living things in the environment. Plants more trees. Plant, हमें बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स लगाने चाहिए, बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड फ्रेश एयर, शेल्टर एंड फूड, क्योंकि ट्री हमें क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, और क्या करते हैं, हमें एयर देते हैं जो हमारे ब्रीथ के काम में आता है। नाउ सेकेंड, डू नॉट डंप गार्बेज केयरलेसली, रिमेंबर टू यूज डस्टबिन। हमें कभी भी गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें हमेशा उसे डस्टबिन में डंप करना चाहिए। नाउ डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, पोन्ड्स एंड रिवर। हमें कभी भी गार्बेज को पॉन्ड्स में यानी वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। दिस कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। नाउ वॉक और साइकिल टू प्लेसेस क्लोज बाय, रिमेंबर कार्स एंड अदर व्हीकल्स कैन कॉज एयर पॉल्यूशन। वॉक और साइकिल, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें हमेशा साइकिल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि साइकिल से पॉल्यूशन नहीं होता है। कार एंड अदर व्हीकल्स हैं कैन कॉज एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन करते हैं। नाउ लास्ट, रिमाइंड द एडल्ट इन योर फैमिली नॉट टू हैंग फ्रिक्वेंटली। रिमाइंड द एडल्ट इन योर फैमिली, हमारे फैमिली में हमें ये समझाना चाहिए कि हमें कभी भी जो हूटर है, जो हॉन्क है, उसे लगातार नहीं बजाना चाहिए। हॉन्क यानी हॉर्न। दिस कैन हेल्प कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, इससे क्या होगा, हम नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर सो मैनी थिंग्स आर देयर टू रिमेंबर। टेक अ लुक एट द पोस्टर. Okay, now move on next page.
Observe the image and answer the question that follow. First, observe the image. Look the image. Garbage is there, and tree and boy. Okay. Abdul was walking in the park when he noticed garbage laying all over the place. He was upset. Abdul was walking in the park. Abdul पार्क में घूमने गया. When he noticed, उसने देखा कि garbage laying all over the place. सब जगह कचरा पड़ा हुआ है. He was upset. उसको देख के वो बहुत upset हुआ. So Abdul was walking in the park when he noticed garbage laying all over the place. He was upset. Now Fab 10.5 is this: think and aim. सोचना है और लिखना है. Why do you think Abdul was upset? Abdul upset क्यों हुआ? Give the answer here. Write the answer here. Second, how will the garbage affect the birds and animals living in this environment? कैसे गार्बेज इफेक्ट करता है बर्ड्स को, एनिमल्स को, लिविंग थिंग्स को एनवायरनमेंट में. ओके. नाउ थर्ड, लिस्ट 2 वेव्स टू कीप दिस एनवायरनमेंट क्लीन. आपको 2 वेव्स बताने हैं जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकेंगे. नाउ a clean environment keep us healthy. It is our responsibility to keep around surrounding clean. So student, a clean environment keeps us healthy. हमें healthy रखता है. अगर environment clean हो, atmosphere हमारा clean हो, it is our responsibility to keep. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सफाई रखें, healthy रहें, our surrounding clean, हमारे चारों तरफ सफाई रखें. Okay students, move on. Last page here. Think I have learned. Complete the mind map. Mind map complete करना है. Environment is the surrounding in which we live, work and move around. Let's call it environment. When we make our environment dirty, we cause. Write it answer here. Interdependence is the exchange between living things and the elements of nature in an environment. Example, write it here. Types of pollution: land pollution, water pollution, so air pollution and noise pollution. Keeping our environment clean is our, and last is a clean environment keeps us. So student, try your best, complete this activity, but don't forget I will send all the activities by the PDF. Okay students, thank you so much.